इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आई नीड distance as a function of time. Instantaneous speed. Let us assume distance traveled. What? Distance traveled at any instant. Suppose is given as t square minus 3t plus 5. T square minus 3t. No, it cannot be like that. T square plus 3t. Distance traveled at any instant. If someone says what is distance traveled at 0 seconds, obviously it is 0. At 1 second, distance traveled is 1 plus 3, 4. Distance traveled at 2 seconds is 4 plus 6, 10. At 3 seconds is 9 plus 9, 18 and so on. So अगर कोई बोले distance traveled का formula as a function of time है क्या आपके पास, तो आप बोलना हाँ है. क्या है formula? Distance traveled as a function of time is t square plus 3t. This is my assumption. ऐसा कुछ दिया हुआ क्वेश्चन. तो अगर आपसे कोई पूछेगा speed at t is equal to 5 seconds. Speed at t equals to 5 seconds. तो कैसे निकालेंगे? So here I need instantaneous speed. When I say at t equals to 5 seconds, so it is actually instantaneous speed. And how do you measure instantaneous speed? Instantaneous speed is differentiation of distance traveled with respect to time. So differentiated, t square का differentiation 2t plus 3t का 3. So 2t plus 3. So at t is equal to 5 second, instantaneous speed is 2 5s are 10 plus 3, 13 meter per second. That's answer. This was in meter, t was in seconds. So answer is 13 meter per second. Okay. Yes. So, आसान है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें. डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं बट उनमें टाइम है. सर वो जो फॉर्मूला दिए थे उसका क्या? ये टी स्क्वायर प्लस 3. कौन सा फॉर्मूला बेटा? नहीं ये वाला dt ना, वो दिए थे ना इंटीग्रेशन वाला t1 t2, उसका नहीं आएगा काम? वो तो स्पीड के हेल्प से डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था बेटा. अच्छा, इंटीग्रेशन वाला ना. सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया है, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा. कभी आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हुआ पहले से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा लिखा होगा, तो उसको इंटीग्रेट कर दो तो डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा. चलो एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ. ऐसा लिखा क्वेश्चन है, speed of a particle at any instant speed is given by, this is not velocity, speed, t 2t minus 1 meter per second. Find distance traveled and average speed in first 10 seconds. ये क्वेश्चन है. क्या दिया? स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड हर इंस्टेंट चेंज हो रही है, एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उन्होंने दे रखा है कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2t minus 1. Speed as a function of time is 2t minus 1. आपको क्या निकालना है? You have to find distance traveled and average speed in first 10 seconds. Distance traveled and average speed in first 10 seconds. I'll give you 2 minutes. You try this, then I'll come to it. जो मैं देता हूँ आप खुद से ट्राई करो. इस बार इंस्टेंटेनियस स्पीड दी है मैंने, कोई किसी से नहीं डिस्कस करेगा. पहले अपने से ट्राई करो आप 2-3 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है. मिला किसी को आंसर? एनीवन? पता आंसर? नहीं मिला सर.
speed at different, okay, speed at different instant is 2t minus 1. हर instant speed बदल रहा है, 2t minus 1 है. At 0 second speed is, oh, my mistake. It should not be 2t minus 1, 2t plus 1 कर लेते हैं. Speed negative नहीं दिखाना मुझे. Let's make it 2t plus 1. So at t equals to 0 second, speed is 3. At t equals to 1 second, speed is, at 0 second, speed is 1 meter per second. At 1 second, speed is 3 meter per second. 2 second, speed is 5. 4 seconds पे 9 and so on. So speed आपका time के हिसाब से change होता जा रहा है. So speed of the particle changes with respect to time as 2t plus 1. Question is, what is instantaneous, sorry, what is distance traveled? So distance traveled is integration of from 0 seconds to 10 seconds. Integrate this to t raised to 1 का integration t square by 2, 1 का integration t raised. Substitute upper limit 100 plus 10, 110, lower limit 0, so 110 meter. बोला. So वो 2t plus 1 by dt वो इंटीग्रेशन में मतलब मुझे 2t समझ में नहीं आया. इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया मुझे. करते क्या हूँ उसमें? सर मेरे को भी नहीं समझा. बेटा भी तू था ही नहीं ना इंटीग्रेशन में. सी 2 कांस्टेंट t raised to 1 को इंटीग्रेट करना था. t raised to 1 plus 1 that is 2 upon 1 plus 1 that is 2 plus 1 का इंटीग्रेशन is t. ठीक, ये फॉर्मूला है. x raised to n का इंटीग्रेशन is, मैथ्स में 12th में बेटा 1 साल वेट करेगा क्या तो इंटीग्रेशन के लिए? फिजिक्स तो अभी इसी साल से यूज होने लगेगा ना. एक फॉर्मूला है केवल, ये फॉर्मूले को एडजस्ट करने के लिए तो कितना टाइम जाएगा. x रेस टू n का इंटीग्रेशन, एक तो फॉर्मूला याद कर लो. जो डिफिकल्ट वाले वो तो मैं डालूंगा नहीं, वो सब 12th के बाद ही आते हैं. नहीं, और एक ही फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है. ये तो आपको करना ही पड़ेगा. x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. दैट्स इट. कोई पूछेगा t रेस टू 1 है, t रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. अगर t रेस टू 0 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. राइट, एक तो फॉर्मूला याद कर ही सकते हो, इतना बनता है. So 2t प्लस, हाँ, प्लस 1 अपॉन प्लस 1. तो यहाँ पे t रेस टू 1 था, हाँ, जो पावर t का था प्लस 1 का, तो अपॉन प्लस 1. राइट, एंड मैं फिर से पढ़ा दूंगा, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ाने वाला हूँ. ये संडे से अपन स्टार्ट करेंगे. लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा. t स्क्वायर बाय 2 वो कैसा है, वो नहीं समझ में. सॉरी, वो 2t स्क्वायर बाय 2 2 कांस्टेंट अलग से रखा हुआ है. हाँ बेटा t रेस टू 1 का इंटीग्रेशन t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. ये 2 छोड़ दो. t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. हेलो जी सर, समझ में आया. Sir, can you tell? So how the 2 constant integration t of raised to 1 plus 1. Integration of 1 is 1. Okay. See, 1 you can treat as t raised to 0. Anything raised to 0 is 1. So you can treat 1 as t raised to 0. So t raised to 0 integration is t raised to 0 plus 1 upon 0. Okay, sir. Okay. So it is just t. So t raised to 1 integration is t raised to 2 by 2. 1 का integration is t. So 2t square by 2, 2 का t square plus t. Limits are 0 to 10. Put upper limit, replace t by 10. So 10 square is 100 plus 10, 110 minus 0 का 0. So 110 meter is distance traveled. So distance traveled in first 10 seconds is 110 meter. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now I have asked what is average speed in 10 seconds. Average speed in 10 seconds. What is average speed in 10 seconds? 11 meters per second. 11 meter per second. How?
मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर Total लिया, distance टाइम upon मिल गया total 11 time. मीटर पर correct. Total distance traveled we have measured as 110 meter, calculated as 110 meter, whereas time interval is of 10 seconds. So distance traveled per unit time is 11 meter per second. In case if I ask you what is speed at 10 t equals to 10 second, then what you'll say? If my question is what is speed at t equals to 10 seconds, speed at t equals to 10 seconds is how much? What is speed at t equals to 10 seconds? 21. 21. 21 मीटर पर सेकंड. कैसे? वो तो यहाँ पे दिया हुआ है. स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज 2t+1. हाँ करेक्ट. सो ये हो गया 21 मीटर पर. सो एग्जैक्टली एट 10 सेकेंड स्पीड वाज 21 मीटर पर सेकंड. बट अगर आप एवरेज निकालोगे तो 11 ही आ रहा. क्यों? क्योंकि पहले धीरे चल रहा था. स्टार्टिंग में स्पीड 1 3 धीरे धीरे बढ़ते गए, तो एवरेज निकाला तो 11 ही आ रहा है. whereas अगर ओवरऑल देखोगे आप तो 20 सॉरी एट दैट इंस्टेंट इट इज 21 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस वाज आई बिलीव इजी पार्ट. अब चलते हैं वेलोसिटी पे, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी. नाउ लेट्स डिस्कस वेलोसिटी. वेलोसिटी वंस अगेन, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, स्टेट करता हूँ, तो आई से when I say speed, so speed is the rate at which distance is covered, but velocity is not the velocity has nothing to do with distance covered. It's the rate at which position changes with respect to time. Change in position is displacement, so basically displacement per unit time. So velocity is what? Velocity is the rate at which position changes with respect to time. Position changes with respect to time. The rate at which position changes with respect to time is known as velocity. Right? Now, once again, anything which is written with respect to time is defined for interval as well as for instant. So, let us begin with average velocity and explore this term first. Average velocity. So average velocity explore करते हैं पहले. So average velocity is defined for an instant or an interval. Interval. Average At an velocity will be in an interval, right? Instantaneous velocity एक instant की होगी, average velocity एक interval की होगी. So average velocity is defined in an interval. Is defined for finite मतलब measurable time interval. ठीक है? I'll repeat. Average velocity is defined for finite time interval. इतना तो sure है. अब देखो, if in time t1 ये instant है and t2 position of particle be given by, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो प्लीज. नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो. हाँ, नहीं पूछोगे तो कोई फायदा नहीं. नहीं, प्लीज आस्क. एक बार नहीं आया तो भी पूछो, 5 बार नहीं आया तो भी पूछो. आई एम देयर, आई विल एक्सप्लेन. एनीवे, सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर. मतलब कैसे? एक पार्टिकल था, यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया. ये इसका इनिशियल पोजीशन है r1 वेक्टर. घूम के पहुंच गया यहाँ r2 वेक्टर. ये t is equal to t1 टाइम पे था, ये t is equal to t2. तो what is average velocity? Average velocity is change in position, that is displacement, r2 vector minus r1 vector upon t2 minus t. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाना. एंड कोई भी स्टेप आपको लगे नहीं 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 सर मजा नहीं आया तो उसको रिपीट करेंगे.
So first step which I am writing is average velocity in a time interval is r2 vector minus r1 vector upon t2 minus t1. Are you convinced with this? This is definition of average velocity. Final position vector minus initial position vector. Final position vector minus initial position vector upon time interval. हाँ सर. Everyone, Yes. किसी को भी लग नहीं रहा सर. नहीं समझ में आया तो नहीं समझा अभिजीत? नहीं आया. ओके सी सर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होगा कि IJK के टर्म्स में होगा? वेक्टर है, सब लिखूंगा अभी, एक एक स्टेप लिखूंगा. वेक्टर क्वांटिटी होगा ये आई जे के टर्म में आंसर आने वाला. आई जे Okay, अगर sir. 2D है 3D होगा तो आई जे के कुछ सी. व्हेन आई से एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये तो आप मानते हो अभिजीत? हेलो अभिजीत गायब हो गया क्या? फिर से मैं बोल देता हूं एक बार. अभिजीत अगर सुन रहा है तो सुनो. द रेट एट विच पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. ठीक है. पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पोजीशन वेक्टर से. तो चेंज इन पोजीशन कैसे दिखाओगे आप? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो एट सम इंस्टेंट t1 यू आर हियर, तो आपका पोजीशन वेक्टर ये था r1 वेक्टर. t2 टाइम पे आपका पोजीशन वेक्टर ये हो गया जब आपकी पोजीशन यहाँ होगी. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1. ये आपका डेफिनेशन है. ये यही चीज को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है. दैट्स इट. मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया. फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई ट्राई टू कन्विंस यू, क्योंकि ये एक एक स्टेप आपके दिमाग में जाना चाहिए. प्लीज अगर नहीं समझ में आता तो आगे, नहीं समझ में आया तो किसी भी स्टेप में बता देना. ठीक है. अब देखो ये r2 माइनस r1 को आई राइट इट एज डेल्टा r वेक्टर और इसी को डेल्टा t लिखता हूं मैं. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज दिस इज नोटेशन. डेल्टा r वेक्टर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. सो व्हेन आई राइट डेल्टा r वेक्टर तो एक्चुअली इट इज चेंज इन पोजीशन vector, that is r2 vector minus r1 vector. What? Change in position vector, that is r2 vector minus r1 vector. Delta t is t2 minus t. Okay. ठीक है. Now इस फिगर में डेल्टा r वेक्टर कहां नजर आ रहा है? दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज r1 वेक्टर. ये है आपका डेल्टा r. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करके देखो, आपको r1 वेक्टर दिखेगा, r2 वेक्टर दिखेगा एंड बाद में r2 वेक्टर माइनस r1 दिखेगा. सी दिस प्लस दिस इज दिस. सो व्हाट इज दिस? दिस माइनस दिस. तो कोई पूछेगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. ये हो गया. रिस्पॉन्ड करो बच्चों, Yes, sir. रिस्पॉन्ड करो. चिन्मयी आज एक आवाज नहीं आया. मैं समझा. ओके. चिन्मयी, चिन्मयी इज देयर? चिन्मयी लेफ्ट. सर नहीं है. आई सोची. ओके. See, so delta r vector is what? Yeah, this is delta, this is displacement, right? Okay. Now this delta r को मैं लिखता हूँ displacement. तो मैंने फिर से लिखा एक बार displacement per unit time. ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. इसी को मैंने रीराइट किया है displacement vector upon time interval. So net displacement upon time. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा. Average velocity is a vector quantity. Average velocity is a vector quantity and its direction
direction is from initial position to final position. Final position. In that interval. Initial position to final position in that interval. Yeah, average velocity is a vector quantity. Its direction is what? From initial position to final position. Right? If you see the figure. So what is your initial position? This is your initial position. This is your final position. This is displacement, and that is direction of velocity also, right? Because average velocity is displacement by time. So direction of average velocity, कोई पूछेगा कभी average velocity का direction क्या आता है? So you have to say from initial position to final position. Why? It is same as that of displacement. Why? Definition है उसका displacement by time. और किसी वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड करोगे तो वही डायरेक्शन मिलती है, हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है. So average velocity is directed from initial position to final position. Okay. Now let's review a statement. Velocity may be positive or negative. May be positive or negative. Or negative. Depending on direction. Depending on its direction. Let's review this statement. What's written here? Velocity may be positive or velocity may be negative depending on its direction. This is what we have studied in previous chapter. Let's review this. So what do you believe now? Is it true or it's wrong? Hello. Velocity हमने previous chapter में बड़ा जोर देके पढ़ा था. Is positive as well as negative. Speed हमेशा positive होता है, but velocity positive और negative होता है. अब क्या मानना है आपका? अभी भी आपको लगता है velocity positive negative होता है या कुछ change हुआ है? कोई तो बोलो, दिमाग लगाओ. होती है. सर पॉजिटिव नेगेटिव होता है. Velocity negative. Okay, so let us say कि velocity negative होता है. तो मुझे बताना आप velocity कौन से केस में negative? Okay, so correct answer is velocity negative नहीं होता. Remember, velocity positive negative कुछ नहीं होता. Velocity velocity होता है. So velocity is a vector quantity. Is a vector quantity. It has some magnitude and it has some direction. That's it. And has some direction. ये ना negative होता है ना पॉजिटिव होता है भाई. ये मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है. फिर भी कई लोगों को लगेगा नहीं नहीं तो पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव कैसे नहीं होगा? देखो देखो ये एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी. तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पता नहीं सर. यहाँ से यहाँ पहुंच गया. हाँ वेलोसिटी ये पॉजिटिव है. और ये अगर पार्टिकल यहाँ से चल के मतलब इस डायरेक्शन में गया होता तो, और ये कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? अरे कुछ नेगेटिव नहीं होता, बस एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. दैट्स इट, राइट? हाँ, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव कह सकते हो. इफ दिस इज v1 वेक्टर, एक का वेलोसिटी, और ये दूसरा है v2 वेक्टर, तो v1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ v2 वेक्टर. बट वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता. एक के रिस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव हो सकता है, बट ये वो स्टेटमेंट नहीं था. नहीं, पहली चीज. फिर ये वन डायमेंशन में ऐसा क्यों था? वन डायमेंशन में काम आसान करने के लिए वहां पे आई जे वो सब नहीं डालना जबरदस्ती आपको. तो दे हैव सेड कि ये 5 मीटर पर सेकेंड इधर जाएगा, फिर 5 मीटर पर सेकेंड इधर जाएगा, तो इफेक्ट दोनों का कैंसिल हो जाता है.
So it is as good as adding a positive number with negative. Hence they made a convention कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव ले लो. तो आपको आई जे और इतना कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर अलजेब्रा करने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चीजें आसान हो जाएंगी. तो फॉर मोशन इन वन डायमेंशन दे हैव मेड अ कन्वेंशन कि towards right if is positive then towards left is negative. But reality में velocity होता है, उसका एक magnitude होता है, उसका एक direction होता है, वो ना positive होता है ना negative होता है. Right? Clear ना? So velocity is a vector quantity, has some magnitude and some direction. It is not positive or negative. Right? Positive negative सिर्फ 2D में, sorry, motion in one dimension में हम लोग convention बना के रखे हुए चीजें आसान करने के लिए. ओके, ठीक है, ये हो गया. अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट. लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल फिगर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट अब लिखने वाला मैं. सो इफ यू रिमेंबर आई हैव ड्रॉन अ फिगर. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, रीचेस हियर. दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. ये था हमारा डेल्टा r वेक्टर. राइट? सो r2 वेक्टर इफ यू रिकॉल इज व्हाट x2i plus y2j. याद है? यस. हाँ सर. x1i plus y1j, ये भी याद है. सो डेल्टा r वेक्टर इज व्हाट r2 minus r1, that is x2 minus x1i plus y2 minus y1j. इस फिगर में डेल्टा x या x2 minus x1 कहाँ था? ये था x1, ये था x2. सो ये था आपको यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x, और यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ y1. तो ये था आपका डेल्टा y. सो डेल्टा r वेक्टर इस फिगर में डेल्टा xi प्लस डेल्टा y. मैंने लिखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है. राइट? ओके, गुड. नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. राइट? सो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी वाज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t. सो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj अपॉन डेल्टा t. Let us distribute denominator delta x by delta ti plus delta y by delta tj. Sachit, I'll start your class in 10 minutes. Huh? So delta x by delta ti plus delta y by delta tj. Let's recall. Let's read this. Try to understand what is delta x by delta t. Delta x is what? Change in x coordinates per unit time. Delta x by delta t can be read as change in x coordinate per unit time. नहीं? Can I read it like this? Yes sir. Delta x by delta t को क्या मैं ऐसा रीड कर सकता हूँ? Change in x coordinate per unit time. Yes, I can read. Delta x is change in x coordinate. Delta t is time interval. So change in x coordinate per unit time. हाँ सर, read this. So this is, yes, this is kind of velocity along x. इसको मैं vx से डिनोट करूंगा. डेल्टा x क्या था? चेंज इन x. भाई एक्चुअल में वो यहां से यहां पहुंचा, बट मैं बोलूंगा x के अलोंग वो यहां से यहां पहुंचा. तो ये क्या होगा? दिस बाय टाइम इंटरवल इज वेलोसिटी अलोंग x. तो I'll say delta x by delta t is nothing but vx. And delta y by delta t, मेरे नजर में y एक्सिस में along वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मैं delta y by delta t को I'll read as change in y coordinate per unit time. I'll read it as vy. I hope you won't mind if I read this as vy and this as vx. और अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूं तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी इज vxi प्लस vyj. अगर ये वाला एक्सप्रेशन आप रिकॉल करो
तो आप एक स्टेटमेंट अंदर से निकल के आएगा आपके, व्हाट इज दैट, Vx and Vy are x and y component of velocity. Vx and Vy are x and y components of velocity. Okay. ये पार्ट लास्ट में जो पढ़ा है मैंने नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करूंगा, राइट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, कल फिर समझाऊंगा, ठीक है। मीनवाइल कल एज यूजुअल कोई क्लास नहीं है, बट एक्स्ट्रा क्लास होगी केमिस्ट्री की, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कल एक्स्ट्रा क्लास लेके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइमिंग आई विल सेंड यू इन अ ग्रुप, ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, Bye, आई sir. विल इन्फॉर्म, टाइमिंग आई विल गिव यू। Okay, sir. Bye. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय।